Assalamu alaikum and good morning, and welcome you all guys and the lecture of the series of the epidemiology subject. In the today lecture of the epidemiology we will cover the public health surveillance. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम क्या होती है. Let's to go on the definition or thematic structure of the public health surveillance. Definition: surveillance, public health surveillance. Definitions. Now the public health surveillance is a continuous, first of all it is a continuous, ongoing, systematic way of data. What you will do? Data, CAI, for the data collection. And the public health surveillance, definitely you will collect the data. They collect of the data of what? Data collect of the disease occurrence, data collect of the occurrence of the disease, and data collect about the any public health practices which is going on in that particular community. Data collection, and definitely the second phase is analyze the data and then interpret the data. Interpretation of data. It is a continuous, ongoing, systematic way of the data collection, then the analyzing, and then the interpretations of the data. So what you will do in the next phase? And use it for what's PIDE. What's the PIDE? Definitely when you use the result of the data for the planning purpose, the first of all you will use it for the planning purpose. You will plan for that particular disease, occurrence of the disease, that particular disease, burden of the disease, to minimize the burden of the disease or to protect or control the particular disease occurrence. The second one is the implementation. सेकेंड आप क्या करेंगे? आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस डेटा के रिजल्ट को यूज़ करेंगे. एंड द थर्ड वन इज़ द डी फॉर द डिसीजन मेकिंग. आपने उस डेटा के रिजल्ट को जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में, सपोज़ किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में किसी पिछले महीने में कॉलरा के कोई 400-500 केसेस आ गए. दो 400-500 केसेस भेजे. यूजुअली कोई एक या कोई भी केस नहीं आ रहा था पिछले 8, 9, 10 महीने में. तो किसी एक ख़ास महीने में एकदम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में 200 से 500 केसेस कॉलरा के आए. एंड दीज आउटब्रेक और दिस नंबर्स, आपने जब डेटा कलेक्ट किया, सर्वे किया, सर्वेलेंस के थ्रू से आपको ये आया कि किसी पास कम्युनिटी में 500 केसेस कॉलरा के ज़्यादा बढ़ गए. देन डेफिनेटली तो वो रिज़ल्ट है वो इट विल यूज़ फॉर द डिसीजन मेकिंग फॉर द अथॉरिटी उस रिज़ल्ट को लेके कोई ना कोई डिसीजन लेगी कि आया उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर कोई वाटर की सप्लाई हो रही है कि वो ख़राब नहीं है, या फूड की सप्लाई हो रही है वो कोई उसमें कोई ख़राबी है. सो दीज द डिसीजन मेकिंग, इट इज़ यूज फॉर द डिसीजन मेकिंग. एंड ई फॉर द एवोल्यूएशन. यू विल यूज़ द डेटा रिजल्ट फॉर द एवोल्यूएशन ऑफ व्हाट? पब्लिक health practices. Public health practices. If the public health practices, if giving the good outcome और outcome अच्छी दे रही है, prognosis अच्छी दे रही है, तो definitely you will go. If तो फिर इसको क्या करेंगे? You will keep the continue. If it is give the bad outcome और यू कैन से पूर आउटकम जो दे रही है कि नंबर ऑफ द केसेस, अक्रेंस ऑफ द डिजीज़ या डिजीज़ की बर्डन को
अगर वो कम कर रही है, दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस, देन यू विल कीप कंटिन्यू इट। अगर वो बैड आउटकम और पूरा आउटकम दे रही है इन द सेंस ऑफ द डिजीज़ को कंट्रोल करने में या डिजीज़ को की बर्डन को कम करने में, देन यू विल to seize that public health practices, then you will go for the adopt for the another public health practices. Okay, so the summarization of the definition of the public health surveillance is: public health surveillance, it is a continuous ongoing systematic way of the data collection, analyzing and interpretation of the data, and then you will use this data result for the planning purpose, for the implementation purpose, and for the decision making, and the last you will use the data result for the evaluation of the public health practices. Okay, and the next phase, now in the next phase we will go to use how the types of the, we will learn the different types of the public health surveillance. Okay, in the second phase of this lecture we will learn, हम पढ़ेंगे कि पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस की कितनी टाइप्स है। पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस की 4 से 5 टाइप है। नंबर 1 इज़ द पैसिव सर्वेलेंस, एंड देन द एक्टिव सर्वेलेंस। टाइप्स ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस: the first one is the passive, second one is the active, and then the third one is the sentinel surveillance, and the syndromic surveillance, and then the rumor surveillance, and then the GHIS system. Okay, now we will go to learn, we will discuss each one in the details. Now what's the passive surveillance? Passive surveillance क्या है? Passive surveillance is the, you can say it is a type of the secondary data. In the passive surveillance, the public health workers जो है ना वो खुद से जाके डोर टू डोर या कोई डेटा कलेक्ट नहीं करते। पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस, यू विल collect the data from the हेल्थ केयर सेंटर्स। जो हेल्थ केयर सेंटर्स है, चाहे वो डिस्पेंसरी है, चाहे वो बर्थ रजिस्ट्रीज़ जहाँ पे होती है, डेथ रजिस्ट्रीज़ जहाँ पे होती है, बर्थ और डेथ रजिस्ट्री से जो है ना आप डेटा कलेक्ट करके सर्वेलेंस कर सकते हैं। या किसी BHU और RSC में चले गए और वहाँ से प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से आपने डेटा कलेक्ट कर लिया। किसी प्राइवेट अस्पताल से आपने जाके किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में डेटा कलेक्ट कर लिया। And these is secondary data which is you collect from the any healthcare centers. Either it is a birth, you can collect from the birth registries, from the death registries, or from the population. Even you can collect the diseases or the data from the any population centers, or from the any statistical department of the any hospital or healthcare center. This is called the passive surveillance, in which the no any stimulus has been given to the public health workers or to the healthcare workers, जिसमें public healthcare workers खुद actively involve नहीं होते और वो जाके डेटा जो है ना किसी भी healthcare center से ले लेते हैं। So the no any stimulus, okay, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक्टिवली हेल्थ केयर वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। एंड दिस इज़ दी सेकेंडरी डेटा, दे विल कलेक्ट दी फ्रॉम दी हेल्थ केयर सेंटर से जाके वो डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम दी रजिस्ट्रीज, बर्थ रजिस्ट्रीज या HMIS से या OPD से जाके आपने डेटा कलेक्ट कर लिया। सो दीज आर दी पैसिव सर्वेलेंस, एंड द पैसिव सर्वेलेंस इज what is the benefit is the cheap, or you can say is a low cost. लेकिन पैसिव सर्वेलेंस की ये उसकी डिसएडवांटेजेस है कि एक तो लो एडवांटेज तो ये है कि लो कॉस्ट है। सेकंड जो इसकी डिसएडवांटेज है कि ये एक्यूरेट डेटा नहीं है। इट्स अ मे बी ओल्ड डेटा और सम मे बी सम टाइप्स ऑफ द डेटा और सम द सेगमेंट ऑफ द डेटा हैज़ बिन मिस्ड बिकॉज उन्होंने कोई पुरानी टूल के ज़रिए से वो डेटा कलेक्ट किया हो।
So, and the second one is that no incentives has been given to the public health workers. Public health workers को इसमें कोई incentives नहीं दिया जाता, तो इसलिए वो कोई proper data को collect नहीं करते with the intention के साथ, with the eager interest के साथ. So, the second is the active surveillance. In the active surveillance, the stimulus has been given, means actively involve होते हैं, door to door जाके और फेस टू फेस डेटा कलेक्ट करते हैं. हेल्थ केयर वर्कर्स, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स को असाइन किया जाता है वो टू डोर फेस टू फेस पर्सन टू पर्सन पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन जाके डेटा कलेक्ट करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड दी एक्टिव सर्विलेंस. एंड दीज एक्टिव सर्विलेंस, इसमें क्या होता है कि सर्विलेंस फॉर्म होती है और सर्विलेंस फॉर्म में कंप्लीट डेटा कलेक्ट किया जाता है according to the new data tool, न्यू सर्विलेंस सिस्टम के लिहाज से कंप्लीट डेटा कलेक्ट किया जाता है. और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि एक्टिव सर्विलेंस इज़ द कॉस्टली तो है, लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि इससे डेटा जो है ना एक्यूरेट डेटा मिलता है. और डेटा की जो अगर उसमें डेटा में कोई एरर्स है, कोई एरर के चांसेस आ रहे हैं, तो आप उसको टाइमली वहीं पर जो है ना करेक्ट कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं. एंड द सेकंड वन, इफ़ द डेटा कलेक्शंस इज़ अ एरर और उसमें कोई बायसनेस आ रही है, तो आप उससे जिस डेटा कलेक्टर ने डेटा कलेक्ट किया उस एरिया का, तो आप उसको वहीं पर हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेनिंग दे के या उसको दोबारा से सर्विलेंस सिस्टम फॉर्म दे के उसको प्रॉपरली ट्रेन करके दोबारा से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. तो एक्यूरेट डेटा जो है ना वो कलेक्ट होती है और मिनिमाइज जो मिनिमम चांसेस ऑफ द एरर का चांसेस होती है एक्टिव सर्विलेंस के अंदर. ओके, नाउ द थर्ड टाइप्स ऑफ द सर्विलेंस सिस्टम, इट इज़ कॉल्ड द सेंटिनल सर्विलेंस. सेंटिनल सर्विलेंस जो होती है वो एक ख़ास स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द पीपल और स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में किया जाता है. ओके, आपने ये देखा कि सेंटिनल सर्विलेंस इज़ द वेरी कॉस्टली, बट इट इज़ द वेरी अथेंटिक to minimize or control the that disease in that particular community. उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में आपने स्पेसिफिक जैसे कि क्लस्टर सैम्पलिंग की जाती है. क्लस्टर सैम्पलिंग में आपने देखा कि इसी ख़ास एरिया में किसी ख़ास पॉपुलेशन के अंदर, मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में G9 के सेक्टर G94 के अंदर कोई इन्फ्लुएंज़ा के केसेस जो है ना बढ़ रहे हैं और वो 5 से लेके 10 इयर्स के बच्चों को ज़्यादा इन्फ्लुएंज़ा जो है ना कैप्चर किया और वहाँ से कोई 500 के 800 के करीब नई केसेस आए हैं. तो आपने क्या किया, वहाँ पर सेंटिनल सर्विलेंस करेंगे उसी स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को. G9 के बच्चों को जो 5 से 10 इयर्स के बच्चों में जो है ना 75% इन्फ्लुएंज़ा के केसेस आ रहे थे, तो आपने उन्हीं को कैप्चर करके उन्हीं से डेटा कलेक्ट कर लिए और वहीं पर उसको कंट्रोलिंग और प्रिवेंशन मेजर जो है ना अप्लाई करके, ताकि वो एपिडेमिक और आउटब्रेक और एपिडेमिक और पैंडेमिक होने से बचा सकें. सो दिस इज़ दी सेंटिनल सर्विलेंस सिस्टम विच इज़ apply on the specific group of the people and the specific community or in a specific geographical area to control or to minimize and to prevent the disease in that particular area. Now the second one is the syndromic. अब सिंड्रोमिक ये होती है कि बहुत से डिजीज़ ऐसे होते हैं कि उनके साइन सिम्टम तकरीबन एक जैसे होते हैं. जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन लिया जाए तो उसमें इन्फ्लुएंज़ा, पैरा इन्फ्लुएंज़ा, क्रोप डिजीज़, लारिंजाइटिस, एपिकोलाइटिस, कॉमन कोल्ड, कफ, एवन दो कोविड-19 के भी जो है ना अपर रेस्पिरेटरी के जो साइन सिम्टम तकरीबन सिमिलर होते हैं. तो इसमें सिंड्रोमिक में क्या होता है कि साइन सिम्टम के बेसिस पे आपने डिजीज़ को कलेक्ट कर लिया, फिर उनको आपने सेग्रीगेट किया फर्दर विद द लैब इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए से. सिंड्रोमिक में क्या हुआ कि साइन सिम्टम के ज़रिए से जो सारे डिजीज़ मिलते थे, एक जैसे थे, देन यू विल गोज़ टू सेग्रीगेट इट इन द आफ्टर द लैब इन्वेस्टिगेशंस के आपको पता चला कि ये कोविड है, कॉमन कोल्ड है या फिर आपने इन्फ्लुएंज़ा है
ठीक है, and then it's may be crop disease. So after the lab investigations आपने इसको कंफर्म किया एंड इसको सेग्रीगेट किया, लेकिन इनिशियली आपने जितने भी साइंस सिम्टम के ज़रिए से आपने सर्विलेंस सिस्टम के ज़रिए से सर्वे किया, सर्विलेंस के सिस्टम के ज़रिए से जो भी साइंस सिम्टम के लिहाज से जो अपर थ्रोट इन्फेक्शन जो आपने डेफिनेशन रखी थी कि कफ होना चाहिए, रनिंग नोज़ होना चाहिए, फीवर होना चाहिए, एंड देन दी इन द ओरल एग्जामिनेशन आप जब आप करेंगे नेज़ल और ओरल एग्जामिनेशन में आप जो है ना ओरल थ्रोट स्वैब और नेज़ल स्वैब्स लेंगे. So these are the on the basis of science symptom you capture the data, capture the disease occurrence of the disease of the pupils, and then definitely and the second phase after the lab investigation you will go to segregate it. जब आप उसको फिर स्ट्रेटिफाई करेंगे तो आया ये कोविड का है, कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है या क्रोप डिजीज़ है. Okay, now the fifth types of the surveillance is called the rumor surveillance. In the rumor surveillance, even though it is in the rumor surveillance, you will be aware about the different type of the data which has been happened or which has been occurred or get the peak and that particular group of the people or the particular community by the news bulletin. Okay, आपको ये पता चलता है news bulletin से. Okay, and then the second one from the social media. You know, nowadays social media is a quite much is a popular among the pupils. social media से, news bulletin से या newspaper के ज़रिए से या any other source which is not authentic, या maybe from the gathering of the pupils when they are discussing about the any type of the disease which has been epidemic or outbreak in their community. So news bulletin से, social media nowadays very popular. social media से आपको पता चल जाता है कि कोई डिज़ीज़ की जगह पे कितने नंबर ऑफ द डिज़ीज़ जो है ना फैले हैं. इसी तरह न्यूज़पेपर से, न्यूज़ बुलेटिन से. नाउ आपने देखा होगा जितने भी बैड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस जो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी में हो रहे थे वो सारे आपको सोशल मीडिया से और न्यूज़ बुलेटिन से मिलते हैं. सो इट इज़ कार्ड दी ये सारे डेटा जो इवन दो इसमें भी जो डेटा है पब्लिक हेल्थ की डेटा ज़रूर है, लेकिन इट इज़ कार्ड दी न्यूमरस डेटा बिकॉज इट इज़ नॉट दी अथेंटिक सोर्स. अथेंटिक सोर्स वो होती है जो रिसर्च में या किसी इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने या किसी हेल्थ अथॉरिटी ने उस डेटा को सर्वे किया हो, सर्विलेंस किया हो, फिर उससे कोई रिज़ल्ट निकल के आया, तब उसको हम एक अथेंटिक एक्टिव या पैसिव सर्विलेंस कहेंगे या सेंटिनल सर्विलेंस कहेंगे या सिंड्रोमिक सर्विलेंस कहेंगे. बाकी जो सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे और किसी और सोर्स से जो डेटा नज़र आ रही है या डेटा से हम एक्सपोज हो रहे हैं या हमें मालूमात हो रही है, अवेयरनेस हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड द रूमर सर्विलेंस. ओके, नाउ दी अनदर लास्ट वन इज़ कॉल्ड दी जियोग्राफिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम. जियोग्राफिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम से भी सर्विलेंस का पता चलता है जिसको GIS सिस्टम कहते हैं. और इसमें जो है ना सैटेलाइट के ज़रिए से या मतलब हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हमें बहुत सी सर्विलेंस सर्वे होते रहते हैं, जिससे ये स्पेशली सर्विलेंस सिस्टम जो है ना ज़्यादातर यूज़ होती है पब्लिक हेल्थ में, स्पेशली जो है ना जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में, वेदर के बारे में, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशंस, एंड देन दे मे बी सम सॉर्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स वगैरह को में जो डिज़ास्टर वगैरह जो है तो वो GIS सिस्टम से आपको उसको कैप्चर करके फ़ोटोग्राफीज़ वगैरह करके वीडियोज़ बना के जो आप कैप्चर करके सर्विलेंस कर सकते हैं. देन यू कलेक्ट दैट, यू विल डिसेमिनेट दैट रिजल्ट टू दी at the planning level or maybe in the implementation level or maybe at the decision making, and then you will evaluate the any public health practice which is going on. So this is the second phase about the public health surveillance and the type of the public health surveillance. The 4 to 5 types, 6 types, 5 to 6 types of the for public health surveillance. The first one is the active surveillance, the second one is the passive surveillance. And the active surveillance, the healthcare worker will involve actively and it will goes to collect the data door to door, face to face by the
in the any community or in any geographical area. And the passive surveillance, no any public healthcare worker will not go actively involved in the data collection. They will visit to the any healthcare center and हेल्थ केयर सेंटर एंड दे कलेक्ट द डेटा, और वो डेटा कलेक्ट करते हैं उसी हेल्थ केयर सेंटर के रजिस्ट्रीज़ के अंदर से, उनके रजिस्टर के अंदर से या उनके HMIA सिस्टम से जो भी डेटा कलेक्ट करें, तो वो पैसिव सर्विलेंस होती है. एंड पैसिव सर्विलेंस इज़ मोर चीपर एज कम्पेयर ऑफ दी एक्टिव सर्विलेंस. दी थर्ड टाइप्स ऑफ दी है, उसको कहते हैं सेंटिनल सर्विलेंस. सेंटिनल सर्विलेंस किसी ख़ास स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में, किसी ख़ास स्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर जो है ना डेटा कलेक्ट की जाती है, और ताकि किसी भी डिज़ीज़ को अकरेंस को या डिज़ीज़ के फैलने को वहीं पर कंट्रोल करके, प्रिवेंट करके वहीं पर जो है ना आइसोलेट किया जाए ताकि वो आगे ना फैल सके. एंड द फोर्थ टाइप इज़ द सिंड्रोमिक टाइप्स ऑफ दी सर्विलेंस. सिंड्रोमिक सर्विलेंस डेटा में क्या होते हैं कि बहुत से डिजीज़ होती है, जैसे मैंने आपको बताया अपर थ्रोट इन्फेक्शन. अपर थ्रोट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में सारे डिज़ीज़ के साइन सिम्टम तकरीबन सिमिलर होते हैं, कॉमन कोल्ड के, इन्फ्लुएंजा के, कोविड-19 के या क्रोप डिजीज़ के. तो इनमें सिंड्रोमिक डिजीज़ में क्या होता है, साइन सिम्टम के बेसिस पे आपने डेटा कलेक्ट करके उसके बाद उसको आप स्ट्रेटिफाइड या सेग्रीगेट्स करते हैं आफ्टर द लैब इन्वेस्टिगेशन के बाद, कंफर्मेशन करने के बाद. फिर आप उसको देखते हैं लैब इन्वेस्टिगेशन से ही देन यू विल सेग्रीगेट it, either it is a COVID-19, common cold, influenza, crop disease, or maybe another type of the disease. The fifth phase of the fifth types जो है ना वो सर्विलेंस का है, उसको रूमर सर्विलेंस कहते हैं. रूमर सर्विलेंस में जो भी डेटा और इंफॉर्मेशन वो पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ या इवेंट के बारे में आती है, वो न्यूज़ बुलेटिन से पता चलता है, सोशल मीडिया से, न्यूज़पेपर से, एंड देन दी अदर सोर्सेज से. लेकिन ये जो डेटा है, दीज आर नॉट दी अथेंटिक, बिकॉज ये किसी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ या हेल्थ अथॉरिटीज़ या इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने कोई सर्विलेंस सिस्टम के ज़रिए से डेटा कलेक्ट नहीं किया. सो इवन दो इस जो सोर्सेज हैं, इससे भी जो है ना आपको पब्लिक हेल्थ के अथेंटिक डेटा मिल रहा है, लेकिन बट इट इज़ नॉट दी डेटा तो मिल रहा है, बट इट इज़ नॉट ए अथेंटिक सोर्स. सो दिस इज़ कॉल्ड दी रूमर सर्विलेंस. एंड द लास्ट जो टाइप्स है सर्विलेंस सिस्टम को, जिसको GIS कहते हैं, जोग्राफिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिससे सैटेलाइट के ज़रिए से या एनी अदर टेक्नोलॉजी के ज़रिए से GIS सिस्टम जैसे कि मोबाइल के अंदर ऐप्स होती है जिसमें GPRS कहते हैं, उसको एक्टिवेट करके उसको यूज़ करके आप सर्विलेंस कर सकते हैं. जैसे कि TB प्रोग्राम में GPS सिस्टम, जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं डोर टू डोर जाके ATT के जो ड्रग्स देते हैं और वहाँ पर डेटा कलेक्ट करते हैं, तो जो हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ हैं या जो वो ये कहते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स अपने साथ ऐप, वो उनको मोबाइल दी जाती है और उसमें ऐप्स डाउनलोड किया जाता है और ऐप्स में GPRS को एक्टिव किया जाता है. तो GPRS जब एक्टिव होगा तो जो हेल्थ केयर अथॉरिटीज़ है अपने हेल्थ केयर सेंटर्स में बैठ के किसी भी रिमोट एरिया में जो उनका हेल्थ केयर वर्कर हुआ गया है, तो वो एरिया आइडेंटिफाई हो जाता है कि वाकई हेल्थ केयर वर्कर्स इस डोर पे, इस स्ट्रीट में, इस घर पे जाके उसने TB के पेशेंट को ATT दिया है, उससे डेटा कलेक्ट किया है कि नहीं. तो GPRS से उसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस का पता चलता है. सो this are the different types of the method by which you can survey or keep the eyes on the surveillance system on the public health issues or public health problems. Now in the third phase we will end our lecture, or will stop our lecture over here of the public health surveillance. And in a today lecture we learn about what is the public health surveillance, what is the definition of public health surveillance, and then we learned that what are the different types of the public health surveillance. I hope in the today lecture it is clear your concept about the public health surveillance system.